ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم اللہ. سبحان اللہ. واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. حضور سیدی و سندی حضرت پیر نوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقش بندیہ مجددیہ گجرانوالا شریف و معزز و مکرم علماء کرام حفاظ کرام اور تمام محبین مریدین سالکین و معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل ذکر الہی کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائیں. آج کا جو خطاب ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو ذکر الہی کی برکات کے حوالے سے اور اس کے فضائل کے حوالے سے، اور آخر میں کچھ گفتگو جو ہے وہ اولیاء کی عظمت اور شان اور ان کی جو شرعی حیثیت ہے ولی کی، اس کے مطابق گفتگو ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو. اللہ. سبحان اللہ. مولا قرآن بھی تیرا ذکر ہے، نماز بھی تیرا ذکر ہے، ساری عبادات تیرا ذکر ہیں، تو یہ جس ذکر کا تو ہمیں حکم عطا فرما رہا ہے اس کا اجر اور صلہ کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. روزہ رکھیں گے تو اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائیں گے. دیگر عبادات کریں گے تو ان کا انفرادی اجر اور صلہ ہے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ انعام ہے. تو مولا جب تیرا ذکر کریں تو اس کا انعام کیا ہے؟ تو پھر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اس کا انعام یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں. یہ اللہ کا انعام ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرنے والے بنو اور کفر مت کرو. تو انعام کیا ہے کہ جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہو کر تمہارا ذکر کرتا ہوں. مثلا بندہ یہاں سے کہے کہ یا اللہ، اس نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر شان عظمت رفعت اور جلالت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے لبیک یا عبدی. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے نا کہ یا اللہ تعالیٰ اسے ایک جواب ارشاد فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے آپ، تیرا رب تیری طرف متوجہ ہے، تو اپنے رب سے طلب کر، وہ تجھے عطا فرمائے گا. اور جب کوئی میرے جیسا سہکار گناہگار اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ 3 دفعہ ارشاد فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. فرض کیا مولا وہ نیک بندہ ہے، وہ تو زیادہ اللہ کے قریب ہے، تو اس کو تو زیادہ جواب ملنا چاہیے. فرمایا وہ تو روز آتا ہے نا، یہ کبھی کبھی آیا ہے تو یہ مایوس ہو کر لوٹ نہ جائے. تو اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. تو اگر میری بارگاہ میں آ گیا ہے اور آ گیا ہے تو پھر تیرا رب تیری طرف اپنے تمام تر شان عظمت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہے، تو اللہ کو پکار تو صحیح. اور ویسے بھی اللہ کا ذکر بندہ کرے تو اللہ اس بندے کا ذکر فرماتا ہے. جیسے کسی بندے کا نام فرید ہو یا فرید الدین ہو اور وہ کہے کہ یا اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کا ذکر کروں گا، تو کیا فرمائے گا؟ یا فرید.
वो क्या कहेगा या अल्लाह, और वो क्या कहेगा या फरीद। और हदीस पाक में आता है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मेरा जिक्र खुफिया करता है तो मैं भी उसका जिक्र खुफिया करता हूँ, और जो बंदा मेरा जिक्र एलानिया करता है, जिक्र जली करता है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फिर मैं जहां वो बंदे जिक्र कर रहे होते हैं उससे बेहतर महफिल में उस बंदे का जिक्र करता हूं। और हदीस पाक में आता है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, जैसे यहाँ आज बज़्म सजी है, तो जब यहाँ बज़्म सजी है तो इधर अल्लाह के जिक्र की बज़्म सजती है। जो बंदे उसका जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह अर्श पर अपने नबियों और वलियों और कुतुब और अब्दाल जो है उनकी रूहों को तलब फरमाते हैं वो बंदे जमीन पर मेरा जिक्र कर रहे हैं, आओ मिलकर हम उन बंदों का जिक्र करें। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की शब जब तशरीफ ले गए तो हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे को देखा तो वो अर्श के नूर में लिपटा हुआ है। तो सरकार ने जिब्रील अमी से पूछा जिब्रील ये कौन है? हालांकि हुजूर सारा कुछ जानते हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ इसलिए पूछा कि ये गुफ्तगू जो है, ये कलाम जो है, ये बंदों तक पहुंचे। सरकार ने बोला जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अर्ज़ कर रहे कि महबूब ये वो बंदा है जो अल्लाह का जिक्र करता है और कसरत से जिक्र करता है, अल्लाह अल्लाह उसका जिक्र करता है। अल्लाह ताला ने इसको अपने इस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि वो अर्श के साए में और उसके नूरानियत के अंदर जो है वो लिपटा हुआ है। ये सिर्फ एक मिसाल दी गई, वरना जो बंदा भी अल्लाह की रिज़ा के लिए अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उसको ये मकाम अता फरमाता है। आप खुशकिस्मत हैं कि आप दिन रात अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक बंदा जिहाद करता है, तलवारें चलाता है, एक बंदा सदका और खैरात करता है, लेकिन एक बंदा है वो अल्लाह के जिक्र में रहता है, तो फरमाया उसका जिक्र करना उनके जिहाद से और उनके सदका से बेहतर है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कोई बंदा अल्लाह की तरफ एक बालिश बढ़ता है तो अल्लाह उसकी तरफ एक हाथ बढ़ जाते हैं। और एक रिवायत में कि एक बंदा अगर एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह ताला 70 कदम उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। और बंदा अगर अल्लाह की बारगाह में चल कर आए तो फिर अल्लाह दौड़ कर आता है, और वो उसका जिक्र खफी करे तो फिर उसका जिक्र वो खफी करता है, और अगर वो जिक्र जली करे तो फिर उसका वो जिक्र जली कर देता है। तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को अपना महबूब भी बना लेता है, तो मेरा जिक्र करता है। और ये जिक्र तो तब से है कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक हुई, मुझे तो सबक का भी हुक्म दिया गया थोड़ा सा आपने उसमें गुफ्तगू करना है। तो हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तख्लीक हुई तो कायनात नहीं थी, ये कौन मकान नहीं थे। तो फिर एक सवाल पैदा हुआ कि हुजूर के नूर को तख्लीक फरमाकर रखा कहाँ जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक फरमाकर अपने दामन रहमत में जगह अता फरमाई, और दामन कुदरत में जब जगह अता फरमा दी तो महबूब अब करें क्या? एक आप हैं, एक मैं हूँ, अब करें क्या? तो फरमाया फज़कुरूनी, महबूब आप मेरा जिक्र करें, अब सुभान हो महबूब आप मेरा जिक्र करें, मैं आपका जिक्र करता हूँ। जब ये जिक्र हुआ ना तो इस जिक्र की दोनों जो बरकतें थी वो हुजूर को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। कि जब अल्लाह ताला ने हुजूर का जिक्र फरमाया, अल्लाह ताला को तो जिक्र की जरूरत नहीं, वो बिज़ात मज़कूर है, वो बिज़ात मज़कूर है, उसको किसी के जिक्र की जरूरत नहीं है। तो जब हुजूर ने अल्लाह का जिक्र किया तो फरमाया महबूब आपने मेरा जिक्र किया है तो आप अहमद बन गए। अहमद उसको कहते हैं जिन्होंने कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया। और जब अल्लाह ताला ने हुजूर का जिक्र फरमाया तो हुजूर उस जिक्र की बरकत से मुहम्मद बन गए। मुहम्मद उस जात को कहते हैं जिनका दुनिया में सबसे ज्यादा जिक्र हो। एक सवाल आपसे पूछ लूं, ये रूहानी से सवाल है, बस इसका जवाब आपने देना नहीं है, जवाब दिल में लेके चले जाना और कब्र में लेके चले जाना। बोलेंगे तो फिर उसका जो फतवा है वो मंसूर हलाज वाला ही होगा।
फतवा क्या है? मंसूर अल्लाह वाला ही फतवा होगा, सारी कायनात अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह सारी कायनात अल्लाह का जिक्र करे, उसको एक पलड़े में डाल दे और अल्लाह हुजूर पर एक दुरूद भेज दे, उसको दूसरे पलड़े में डाल दे, बस मसला हल हो गई। क्या सारी कायनात अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह हुजूर पर सिर्फ एक दुरूद भेज दे। अल्लाह का जिक्र जो है मखलूक करे तो एक तरफ रख दे, खालिक सिर्फ एक दुरूद महबूब पर भेज दे। इसलिए कहा गया ना कि वैज़ा सालका इबादी अन्नी, महबूब मेरे बंदे जब ढूंढते ढूंढते ढूंढते, कोई मस्जिद में ढूंढे, कोई मंदिर में ढूंढे, कोई गिरजे में ढूंढे, आखिरकार वो महबूब आपके पास आ जाए और मेरे मुतल्लिक मेरे बंदे आपसे पूछे, इज़ा सालका इबादी अन्नी व इन्नी करीब, महबूब अब वो आपके नेड़े हो गए तो उनको फरमा दें अब वो रब के नेड़े हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सीज़ान मुहतरम मुतशम, ये जो अहलुल्लाह हैं इनका जो तरीक है वो थोड़ा सा निराला होता है और अल्लाह ने इनके लिए इनाम भी इरशाद फरमाया है, इनके लिए बशारतें भी इरशाद फरमाई हैं और साथ फरमा दिया कि जो इनकी मोहब्बत है अहलुल्लाह की वो कुरान से साबित है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि वो लोग जो ईमान ले आए और अमाल साले किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, तो अल्लाह ताला उन नेक लोगों की, उन साले और ईमान वाले लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। तो ये जो हम अहलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं ये हमारा कोई इसमें कमाल नहीं है, ये अल्लाह की अता है। हदीस पाक समाअत फरमाएं, इसके यानी तफसीर कुरान बिल हदीस कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अमीन को बुलाते हैं, जिब्रील इधर आओ। जिब्रील हाजिर तो मौला मेरे लिए हुक्म, अल्लाह फरमाता है वो फला कोने में देखो बंदा जो है, मौला देख रहा हूँ, फरमाया उस बंदे से मैं रब होकर मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है जिब्रील जब मैं मोहब्बत करता हूँ रब होकर तो मेरी मोहब्बत की वजह से तू भी उससे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पे एक सवाल होता है कि ये जी अल्लाह से मोहब्बत ऐसे ही कर देते हैं, दिल में तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, दूसरी मोहब्बतें कहाँ से आ गई? ये कुरान से आई हैं, ये हदीस से आई हैं। जहाँ कहा गया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान ले आए हैं उनको अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है और अल्लाह का जिक्र ऐसे ही करते हैं हदीस पाक में कि लोग उनको मजनू कहने लग जाए और मुनाफिकीन जब देखें तो वो उनको रियाकार कहने लग जाए, ये ड्रामा कर रहे हैं। जबकि अल्लाह के जिक्र में वजद हो जाना ड्रामा नहीं है, बल्कि ये हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है। ये भी सुन ले वजद कहाँ से आया है, क्योंकि जो लोग उस कैफियत से और उन कैफियत से गुजरे नहीं हैं वो मोतरज़ होते हैं। तो वजद का होना हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है कि हुजूर ने माल तलब फरमाया ना कि तुम जिहाद के लिए माल चाहिए तो अपना अपना माल इस्लाम की खिदमत के लिए पेश करें। तो सैयदना उमर फारूक जो थे वो अपने घर का आधा माल ले आए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर सारा माल ले आए और जब सारा माल हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया ना तो उठकर जा रहे थे, रास्ते में तो कुछ जो मुनाफिक थे और काफिर थे हुजूर के पीछे चले गए, हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के, कि आज इस आशे के रसूल को आजमाते हैं। ये जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं जरा इनको आजमाते हैं, ये हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं इनको आजमाते हैं। तो अर्ज करते हैं हुजूर मुझे ना एक सूट तो अता फरमा दे अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर। अब कैफियत ये थी कि वही सूट एक बचा था। जब घर से माल उठा कर ले आए थे तो दीवारों पर हाथ फेरते थे कहीं सुई भी ऐसी न रह जाए जो हुजूर की बारगाह में पेश न की जा सके। तो घर का सारा माल तो हुजूर को पेश कर दिया, तो वापस खाली हाथ जा रहे थे। तो अब उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कुछ अता फरमाने, फरमाया मेरे पीछे आओ।
جب پیچھے گئے اور اندر گئے تو اندر نا گھر میں دیکھا تو کپڑا ہی نہیں پہننے کے لیے، تو ایک پھٹا پرانا ٹاٹ پڑا تھا جو پہلے حضور کی بارگاہ پیش کرنے کے قابل نہیں تھا، وہ تہ بند کے طور پہ باندھ لیا اور اندر سے کھڑے ہو کر کپڑے اپنے اتار کر عطا فرما دیے، ادھر بیٹھ گئے۔ ادھر جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فرمایا جائیں اور حضور سے کہیں کہ ذرا صدیق اکبر کو بلائیں، یہ شان بھی تو دکھانا ہے نا، ذرا ان کو بلائیں۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلانے کے لیے گئے تو اب ان پہ امتحان تھا کہ اگر نہیں جاتا تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی ہوتی، اور اگر اس حال میں نکلتا ہوں تو کافر تانے دیں گے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اس حال کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن حضور کا حکم مقدم تھا کہ تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے نا، چھپ کے حضور کے پیچھے بیٹھ گئے، حضور کے پیچھے بیٹھ گئے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مسکرا اس لیے، حالانکہ حضور نے پیچھے دیکھا نہیں، فرمایا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جو لباس میرے صدیق نے پہنا ہے اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے مجھے ادا پسند آ گئی، تم بھی یہ لباس پہنو۔ اور جبریل بھی ایسا ہی لباس پہن کر آئے بیٹھے، جبریل بھی ایسا ہی لباس پہن کر آئے بیٹھے۔ تو مولا یہ کیا کہنے آئے ہیں؟ فرمایا اللہ کا پیغام لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ صدیق سے فرما دیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب آپ محبوب ان سے پوچھ کر بتا دیں یہ اللہ کی عطاؤں پر راضی ہیں کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، ایسے بھی دونوں ہاتھ لوگ کرتے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے اقبال نبی کے دیوانے افکار نبی کے دیوانے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے ذرا پوچھیں کہ اللہ ان کی جو بھی خیرات ہے اور اس پہ راضی ہو گئے، ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ان سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ یہ اللہ کی عطاؤں پر راضی ہیں کہ نہیں؟ تو سرکار نے پیچھے منہ فرمایا، فرمایا صدیق رب کا پیغام آ گیا۔ اللہ پوچھ رہا ہے صدیق آپ اپنے رب کی رضاؤں پر راضی ہیں، اس کی عطاؤں پر راضی ہیں؟ تو سیدنا صدیق پر اعزاز میں کھڑے ہو گئے، کہاں صدیق اور کہاں رب کا پیغام؟ میں کہاں ہوں بندہ کہ میں اپنے رب کی عطا پر راضی نہ ہوں؟ تو کھڑے ہو گئے اور آپ نے وجد میں آ کر 3 چکر لگائے، فرمایا مولا اتنا کرم۔ یہ وجد کرنا جو ہے، یہ جو آپ دنیا جائیں گے اور ادھر ترکی میں جائیں یا عراق میں جائیں، میرا ہوتا رہتا ہے سفر، تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے تو وہ دائرے میں کھڑے ہوتے، وہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ میرا سلسلہ چشتیہ فریدیہ ہے اور نقش بند سور بردیہ سارے قادریہ سلسلے یوں ہیں آپس میں، کیسا ہے؟ یوں ہے، یہ محبت کا عالم ہے، یہ محبت کا عالم ہے۔ ہم نے جوڑ کے رکھا ہوا امت کو ہم نے جوڑ کے رکھا ہوا۔ ہمیں کہیں سے نظر آ جائے نا، کوئی چشتی نظر آ جائے، کوئی قادر نظر آ جائے، کوئی سور بردی، ہم ان سینے سے لگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم ان کو سینے سے لگاتے ہیں۔ تو اقبال نے شاید اسی منظر کی طرف دیکھا نا، تو فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا اللہ سبحان کہ اللہ۔ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتے ہیں، جبریل وہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو بھی میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کر۔ اس بندے سے جو پہلی محبت ہے وہ کہاں ہوئی؟ اوپر آسمانوں میں، عرش پر۔ زمین پر بھی محبت نہیں آئی، ولی کی محبت جو ہے وہ آغاز کہاں سے ہوئی؟ اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اس میں ہمارا کوئی قصور ہے؟ بھائی وہ اللہ ہے، وہ اس کا بندہ ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، فرمایا مولا پھر، فرمایا دوسرے درجے میں جبریل تم بھی محبت کرو۔ جبریل عرض کرتے مولا اگر تو اسے اپنا پسندیدہ بناتا ہے، تو اسے اپنا محبوب بنا چکا، تو میں بھی اسے اپنا پسندیدہ کہتا ہوں، وہ بھی میرا محبوب بن گئے۔ فرمایا بس یہی بات جا کر اب سارے اہل آسمان کو بتا دی، تمام آسمان والوں کو بتا دے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اور تمہیں بھی حکم ہے کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اب یہ تیسرا درجہ ہو گیا، محبت زمین پر آئی ہے۔ الزام ہم پہ لگتا ہے کہ آپ اپنے دل میں
औलिया की मोहब्बत डाल देते हैं। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तो कमाल मेरा है। और फिर अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को हुक्म देते हैं कि जमीन पर उतर जाओ, सुम्मा युज़अल कबूल फिल अर्द, फिर उस बंदे की मोहब्बत जो है वो जमीन पर रख दी जाती है और फिर लोग उसकी तरफ कशां कशां खींचे खींचे चले आते हैं। हम बैठे यहाँ हैं और शहनशाह नक्शबंद का जिक्र कर रहे हैं, क्यों? अल्लाह हम बैठे यहाँ होते हैं और शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, बहुत समदानी उनका जिक्र खैर कर रहे होते, मुफ्ती बगदाद उनका जिक्र कर रहे होते। वजह और हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए किसी वली अल्लाह से मोहब्बत करेगा कि वली दूसरे कोने में रहता होगा और वो दुनिया के दूसरे कोने में रहता होगा, लेकिन रोज माशर अल्लाह दोनों को यूं खड़ा कर देगा, फरमाएगा जाओ तुम्हारा खात्मा इकट्ठा करता हूँ, तुम मेरी रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरी रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते थे। और इस हवाले से आखिरी मुझे जो टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी हैं, तो आखिरी हदीस पाक अर्ज कर देता हूँ कि जो औलिया अल्लाह हैं इनकी बारगाह में जाना जो है, एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर से खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए, अल्लाह ने भेजा उनको कि नबी का मकाम ज्यादा होता है, वली का मकाम उनसे कम होता है, तो नबी को वली की तरफ भेजकर इसको सुन्नत कर दिया। नबी को वली की तरफ भेजकर इसको सुन्नत कर दिया कि कल को वली की तरफ जाना जो है उस पर कोई एतराज न करे कि जब नबी चलकर जा रहे हैं उसको सुन्नत कर दिया। और मकाम क्या बताया, निशाने पर महबूब जब जाए तो कहाँ पे जाए, तो जो आपने अपने पास कटी हुई मछली रखी है ना, अल्लाह ये जहाँ जिंदा हो जाए, कटी हुई भुनी हुई तली हुई मछली जहाँ ये जिंदा हो जाए वो वली का मकाम हो। सुभान निशानी क्या है? अब भी उसकी गहराई और गिराई को नहीं समझे। कुरान में निशानी क्या बताई वली के आस्थाने की? फरमाया जहाँ कटी हुई भुनी हुई मछली जिंदा हो जाए वो वली का आस्थान होता है। तो वली की ये निशानी है कि जहाँ जिंदा मुर्दा दिल जो है वो जिंदा हो जाए, अल्लाह जहाँ मुर्दा दिल जिंदा हो जाए वो वली का आस्थाना होता है। हदीस पाक हुजूर से पूछे, हुजूर कोई वली की सादा सी निशानी बताए, अल्लाह वो सादा सी। तो हुजूर ने शायद फरमाया बस वली की ये निशानी जिसे देखो तो खुदा याद। तो आखिर हदीस पाक एक बंदा था तो उसने ना 99 कत्ल कर दी, तो तौबा का इरादा कि यार तू बड़ा शाकार है, गुनाहगार है, तो तौबा का इरादा करके निकला। तो एक बंदे से पूछा कि कोई बंदा बताओ, उसने कहा जी फलां गिरजे में एक बहुत बड़ा राहिब बैठा तो उसके पास चले जाओ और वो आपकी तौबा का सामान कर देंगे। जब गया अंदर और जूतों समेत पहुंच गया और उसको कहा जी मैंने 99 कत्ल किए हैं और ये खून आलूद तलवार हाथ में है, तो मेरी तौबा की सबील निकल सकती है। तो आपको पता ना कि थोड़े से ये जो होते हैं मौलवी टाइप लोग, ये थोड़े सख्त होते हैं मिजाज में। हमें तो ये तरबियत दी गई कि गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत करो। अल्लाह अल्लाह गुनाहगार तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते तो अल्लाह फरमाता है तूने तौबा कर ली, जा तुझे मैंने माफ कर दिया। सुभान तो वो उसने सख्त मिजाजी की, तो उसने कहा कि तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। उसने कहा अल्लाह ने तो फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह मेरी रहमत से मायूस और ना उम्मीद मत हो, और तू मुझे अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कर रहा है। उसने निकाले तलवार, उसने कहा क्या 99 बख्शे जाएंगे एक और से। अल्लाह अल्लाह उसने उसका भी सरतान स्वीकार कर दिया। जब बाहर निकला तो उसने कहा वो 99 एक तरफ और ये बड़ा आलिम था ये एक तरफ, उनका वजन उनका तो कामत एक तरफ और ये एक अकेला बंदा एक तरफ। तो मजीद परेशानी बढ़ गई। बस फिर को अल्लाह वाला मिल गया। उसने कहा जी क्या मसला, परेशान क्यों? उसने कहा जी 99 कत्ल पहले किए थे, एक अभी कर डाला है, अल्लाह तौबा का इरादा लेकर निकला हूँ, तो मुझे कोई तरीक बताओ। उसने कहा मुझे और तो कोई अंदाजा नहीं है, वो सामने अल्लाह वालों की बस्ती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वालों की बस्ती में चले जा अल्लाह। और वहां जाकर तौबा इस्तगफार कर, तो अल्लाह ताला उनकी बरकत से तुम्हारी इन खताओं को माफ फरमा देगा। अभी वो चला था, मैं फर्ज कर रहा हूँ आपके सामने फासला कि फर्ज करें कि वो 10 मील थे, तो उसने अभी 2.5 मील किए। कितने? 2.5 मील उसने किए हैं तो मौत आ गई। और वो उसकी रूह जो है वो निकल रही है, तो उसने गिर गया। जब गिर गया तो उसने फिर भी कोने के बल थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया, किसी तरह पहुंचो, सीने के बल थोड़ा सा आगे क्रॉल करना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ तो आगे वलियों के करीब हो जाओ। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी मौत हो गई। अभी उसने चौथा हिस्सा सफर का तय किया। अभी उसने इतना सफर तय किया है तो ऊपर से फरिश्ते आ गए
जन्नत के फरिश्ते आ गए और दोज़ख के फरिश्ते आ गए। दोज़ख के फरिश्ते कहें कि इसको हम ले जाएंगे कि ये 100 बंदों का कातिल है, अल्लाह और जो जन्नत के फरिश्ते वो कहें नहीं, ये जा तो तौबा के इरादे से रहा था और वलियों की तरफ जा रहा था, तो लिहाजा हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जब ये मंजर देखा ना, तो अल्लाह ताला ने ऊपर से एक फरिश्ता जो था उसको मुनसिफ बनाकर भेज दिया, और मैं जाओ ये फरिश्ते लड़ रहे हैं, इनके दरमियान फैसला करो। वो फरिश्ता आ गया, उसने कहा जी मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करने आया हूँ। उन्होंने कहा किस पैमाने पर फैसला करोगे? फरमाया अभी पूछ के आता हूँ। वापस के अल्लाह की बारगाह में, मौला किस पैमाने पर, तो पैमाना क्या होना चाहिए? तो अल्लाह का निशान फरमाया वापस जा और जमीन माप। अब ये एक कलमा आप गौर से सुन लीजिएगा, इसी में सारा तसव्वुफ है। तो अल्लाह ने जो पैमाना अता फरमाया, फरमाया अगर वो वलियों के करीब है, अल्लाह अगर वो वलियों के करीब है तो उसे जन्नत मिलेगी। I repeat, मैं दोबारा इसको अगर वो वलियों के करीब है तो उसे जन्नत मिलेगा। अगर वो वलियों के करीब है तो उसे जन्नत मिलेगा। मैं फिर दोहराता हूँ, अगर वो वलियों के करीब है तो जन्नत मिलेगा। अगर वो वलियों के करीब है तो जन्नत मिलेगा। वहाँ मसला क्या था कि अभी तो उसने 2.5 किलोमीटर की और 7.5 किलोमीटर रहते थे, तो अभी फरिश्ता वो इंचेस टेप लेके भाग रहा था, नीचे आ रहा था। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन इधर से फैल जा, उधर से सुकड़। वो जमीन उधर से फैल गई, उधर से सुकड़ गई। जब उसने जाकर मापा तो वो जो सफर कर चुका था वो 7.5 किलोमीटर था, और जो रहता था वो 2.5 किलोमीटर था। का मौला ये तो वलियों के करीब है। फरमाया फिर फरमाया तो है किसे जन्नत में ले जाओ। अब हदीस पाक खत्म होगी, इस पे मैं आपको मोती चुन के मैं इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह ने ऐसा क्यों फरमाया। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने फरिश्ता क्यों मबूस फरमाया कि जाओ और जाकर वहाँ इनके दरमियान फैसला जो है वो करो। अल्लाह को क्या जरूरत है? हजारों लाखों बंदे मर रहे हैं रोजाना। अल्लाह फरमाते रोजे माशर आना तुम्हारा हिसाब कर लेंगे, देख लेंगे तुमने जन्नत में जाना है कि दोज़ख में जाना है, तोल लेंगे तेरे अमाल, फिर देख लेंगे, फैसला कर लेंगे। तो मौला ये क्या हुआ? और जमीन को तूने तेरा सुखेड़ा क्यों, इधर से फैलाया क्यों, तूने हुक्म क्यों दिया, अपना निजाम कुदरत बदल दिया। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये मेरे वली की इज्जत का मामला था। अगर उस दिन वो बंदा नामुराद लौट जाता तो लोग वलियों की तरफ जाना छोड़ देते। इसलिए मैंने वलियों की इज्जत की खातिर अपना कानून बदल डाला, निजाम बदल डाला। कोई मेरे वली की तरफ चल कर जाए और वली की इज्जत और नामूस पे हर्फ ना आए, फिर मैंने उस बंदे की बख्शे का परवाना जारी कर दिया, मैंने निजाम कुदरत बदल दिया। लेकिन मैंने सिर्फ वली की जो इज्जत है, जो मकाम है, जो मर्तबा है, उसको कायम और दायम रखा। लिहाजा जो अहलुल्लाह है उनके साथ अपनी जो ताल्लुक है उसको कायम रखे। इसीलिए कहा गया वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के सोबत में बैठा करो, उठा करो। उनके साथ जितना कुर्ब होगा अल्लाह ताला उतना करम और फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पीर साहब का साया हम पर तादेर सेहत के साथ कायम और दायम रखे। जितने भी मुरीदीन हैं सब अल्लाह ताला अपना करम और फजल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं ये से ज़्यादा चाहूँगा कि सुबह यूनिवर्सिटी में हाजिर होना, एग्जाम्स हमारी यूनिवर्सिटी शुरू हो रहे हैं, तो शाह साहब से मैंने ले लिया सुभान अल्लाह। ले लिया।